this is a connected graph of these are the nodes A, B, C, D, E, F, and G. So this graph consisting seven nodes, and the number of edges are uh, suppose this is edge E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10. 7 nodes, 10 edges, and this is a connected and directed graph. And suppose the weights of the edges are, suppose the weights of edges is, this weight is 2, this weight is 3, this weight is 4, this weight is 5, this weight is 2, this weight is 1, this weight is 4, this is 5, this is 3, this is 2, this is 3, this is 5. All edges weights are given in this graph. So here we write down what is the weight of edge E1, the weight of edge E1, that is 2, weight of edge E2, that is 2, weight of edge E3, that is 5. First we write down the weight E3, that is 5, and this edge E1 we also write down here. E1 connects two edges A and B. E2 connects edges B and C, or C and B. Similarly, E3 connects edges. E3 connects what edges? E3 weight is 5, and this connects B and D. Similarly, E4 weight is 4. E4 weight is 4, and this connect the edges C and D. E5 weight is 1. E5 weight is 1. This connects the edges between A and C. E5, E6, E7, E8, E9, E10. तो E6 the weight of E ज्वाइन होना चाहते हैं. Okay. The weight of E6 is 5. Weight of E7 is 3. The weight of E6 is 5. Weight of E7 is 3. E6 is the edge between a pair of vertices A and E, and E and F. A and E and F, and E8. What is E8? This is the edge between B and G. This is the edge between B and G. And what is the weight is 3. E8, E9 is what? E9 that connects edges with D and F, and the weight is 3. D and F, and E10 which connects the edges between F and G, and the weight is 5. ये 45 लिया, ये 4 ये destroy other. Suppose this is 5. So E10 that connects H, F and G, and the weight is 5. F and G. In this way, we here first we assign the weight of each edge and write down the weight of edge. Then find the minimum spanning tree of graph given
graph by using first approach, Kruskal algorithm, and second one is the Prim's algorithm. We already discussed about the Kruskal algorithms. In case of Kruskal algorithms, sort the edges as per their increasing order of weights. Increasing of order of weights. Here we see that increasing of order weight is smallest weight is 1. So this is E5. Then next smallest weight is E1 and E2. E1, then E2. Then another weight 2 is nothing. Then what is the weight 3? E7 and E8, E9. E7, E8, E9. All weights are 3. Then after that the 4 weight edges is E4. After that E4, then what next is E3, weight is 5, and next is after that E3 and E10. E3, E6 and E10, E3, E6 and E10 all are 5 weight edges. So this means that we sort the edges in increasing order of their weights. Then we select first we select, यहाँ पे first we select, अब 2 सेट होंगे, एक पे selected edges and दूसरे पे non selected. तो initially suppose selected set of vertices selected and non selected. तो इनिशियली नॉन सिलेक्टेड में आपकी सारी अनसॉर्टेड सारी सॉर्टेड एजेस रहेंगी E5, E1, E3. इसमें से सिलेक्टेड अभी क्या होगा, दिस इज एम्प्टी. इनिशियली दिस इज एम्प्टी. अब इसमें से हम क्या लेंगे, फ्रॉम नॉन सिलेक्टेड सेट ऑफ एजेस वी टेक अ स्मॉलेस्ट एजेस. फर्स्ट एज लेंगे इफ एंड चेक वेदर इट फॉर्म्स अ साइकिल और नॉट. तो चेक वेदर इट फॉर्म्स अ साइकिल. अब आपको ग्राफ बनाना है सिंपली. तो सिंपली व्हाट इज हियर, we write down the all the vertices because A, B, C, D, E, F and G. E, F and G. These are the edges. These are the vertices of the graph. And first we select a shortest weight edge. Means which the edge whose weight is minimum. So E5 weight is 1. So firstly we select the E5 edges because this does not form, so because this is the first edges, it means it not forms a cycle. So E5 connects the edges A and C whose weight is 1. First here A and C, this weight is 1. This is E5. Then अब यहाँ पे सिलेक्टेड वर्टिसेस में क्या आ जाएगा आपका, E1 आ जाए, E5 आ जाएगा. और नॉन सिलेक्टेड वर्टिसेस में रेस्ट ऑफ द, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द एजेस रहेंगी लाइक ये E5 के बाद क्या है E1, E2 अप टू E10 रहेंगी नॉन सिलेक्टेड एजेस में, ये सब रहेंगी. नेक्स्ट सिमिलरली देन वी कनेक्ट एजेस व्हाट E1, E2, E7 में से कोई भी ले सकते हैं बिकॉज E1, E2, E7 ऑल 3 आर 2 वेट एजेस. तो अब E1 सपोज करिए हम पहले E1 ले सकते हैं या आप E2 भी ले सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑल आर सेम वेट, उससे वेट चेंज होने वाला नहीं है. तो नेक्स्ट हम सिलेक्टेड एजेस में E2 को लाए, E1 को लाएंगे. अब देखेंगे क्या E1 किसको कनेक्ट कर रहा है. E1 कनेक्ट्स द एजेस A एंड B and check whether this forms a cycle. It not forms a cycle. When we connect A and B, it not forms a cycle, means we include this edge in the selected edges. तो यहाँ पे आ जाएगा E5, E1. और नेक्स्ट आपका देखिए, अब नेक्स्ट मिनिमम वेट एज क्या है आपका. नेक्स्ट जैसे हमने E1 को सिलेक्ट किया तो E2 या E7, E2 और E7 दोनों 2 वेट एजेज हैं. तो नेक्स्ट जो आपके नॉन सिलेक्टेड एज हैं, नॉन सिलेक्टेड सेट ऑफ एजेज, उसमें E2 और E7 सेम वेट के हैं. तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं. फर्स्ट सपोज वी टेक अ E2 दैट कनेक्ट्स B एंड C. तो व्हेन वी कनेक्ट B एंड C, दिस फॉर्म्स अ साइकिल. व्हेन वी कनेक्ट दिस B and C, this forms a cycle. Means
बी डिस्कार्ड दिस एजेस। तो अब E2 को सिंपली क्या करेंगे, हम यहां से E2 को डिस्कार्ड करेंगे, E2 को डिस्कार्ड कर देंगे, देन बी सिलेक्ट। अब आपका जो नॉन सिलेक्टेड सेट ऑफ एजेस है उसमें क्या बचेंगे, E7 से लेके E10, these are the non-selected. तो B select a minimum weight edge out of non-selected edges. तो E7 the weight is 2. तो next E7 that connects what? E7 that connects E and F. तो when we draw this edge, if it forms a cycle, we ignore it. Otherwise, we select it to E and F. When we connect E and F, this forms a cycle. No. When we connect these two edges, this not forms a cycle. So we connect E and F. What is the weight of this? Is E7 and weight is 2. Next is what? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, E5 हो गया, E1 हो गया, E5, E1, देन E7. नेक्स्ट E7 आपका यहाँ आ गया। अब आपका सिलेक्टेड एजेज में, नॉन सिलेक्टेड एजेज में E8 टू E10, अब E8, E9, E8 देखिए, E8 का वेट क्या है, E8 का वेट 3 है, E9 का वेट 3 है, बस ओनली 2 एजेज हैं जिनका वेट 3 है। तो E8, E9 में से किसी को भी आप फर्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, E8 को और E9। सपोज वी सेलेक्ट फर्स्ट एज ए मिनिमम वेट एज, दैट इज E8। तो E8 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट इज E8? E8 that connects the vertices B and G. So after connecting vertices B and G, first we check whether this form a cycle or not. If it forms a cycle, we ignore it. Otherwise, we draw. So this is B E8, that is the edge between B and G, whose weight is 3. B and G. So this is the, when we connect B and G, it not forms a cycle. So this means this is E8 and this weight is 3. नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट, अब E8 आपका यहां पे आ जाएगा, E5, E1, E7, E8। नेक्स्ट मिनिमम वेट एज, अब आपका नॉन सिलेक्टेड में क्या बचेगा, E8 टू E10, सॉरी E9 टू E10, मिनिमम वेट इज E9। व्हेन वी कनेक्ट E9 to E9 that connects D and F, when we connect D and F, it forms a cycle or not, D and F. So when we connect D and F, it not forms a cycle. This means this is in selected edges. और इसका edge weight क्या है, E9, that is weight of this edge is 3. So this is, अब next इसमें आ जाएगा selected edges में E5, E1, E7, E8, E9। अब देखिए हमारे पास टोटल 7 वर्टिसेस थे, अभी तक यहाँ 6 एजेज आए हैं, सॉरी 5 एजेज हैं, एक एज और होना चाहिए तभी हमारा ग्राफ कनेक्टेड होगा। अभी एक ग्राफ देखिए डिस्कनेक्टेड है, एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एज, अब देखिए अब आपकी नॉन सिलेक्टेड में बची हैं E4 टू E10। व्हाट इज द वेट ऑफ E4? वेट ऑफ E4 इज व्हाट, 4, एंड दिस कनेक्ट C एंड D। E3 weight is 5 है, तो only 4 weight is E4 that connects C and D. So when we connect C and D, it forms a cycle, not forms a cycle. So this is the E4S, whose weight is 4, that connects between C and D. And this means we take this edge in selected edges E5, E1, E7, E8, E9, then E4. This means the number of edges that are equal to n minus 1, where n is the number of vertices. So this means all the vertices are connected through n minus 1 edges, and this is the spanning tree whose weight is minimum. So this is minimum spanning tree, minimum spanning tree or minimum weight spanning tree. इससे minimum weight का कोई भी spanning tree form नहीं कर सकते. This means this is a greedy approach for obtaining minimum cost spanning tree or minimum weight spanning tree. So this is the Kruskal algorithms. Then what is the greedy algorithm? What is the Prim's algorithm? Prim's algorithm for finding minimum spanning tree. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये नहीं था कि आप किसी पर्टिकुलर, इन केस ऑफ Kruskal algorithms, we not start a formation of tree from a particular vertex. अब यहाँ पे आपके पास इन केस ऑफ ग्रीडी अप्रोच, बी स्टार्ट
formation of tree from any vertex of the given graph G। अब आप यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, whether it is given in the question or can take or select as per your choice। तब भी ये आपको जो है क्या देगा, मिनिमम स्पेनिंग ट्री देगा व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, मेक अ मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दिस मींस दिस इज अ n क्रॉस e मैट्रिक्स बनाएंगे, सॉरी एडजेसेंसी मैट्रिक्स, दिस इज अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, n cross n matrix, and so this is, suppose this matrix is A is n cross n, n means n is the number of vertices, and this we make this vertex। अब यहाँ पे देखिए आपका A B C D E F and G, these are the, similarly here same number of column A B C D E F and G, so 7 number of rows and 7 number of columns in this matrix। and what is the, there is no edge between A and A, same vertex से same vertex के लिए edge का क्या हो जाएगा, वेट इनफाइनाइट हो जाएगा। दिस इज ए बी के बीच में कोई दिया हुआ है बेट, यहां से आपको ग्राफ देखना पड़ेगा ए बी। अब देखिए ए बी, ए से कितने एजेज स्टार्ट हैं, ए किस में है, यहाँ पे देखिए ए किस में है, ए से बी को कनेक्ट कर रहा है, ए से सी में है, ए से ई में है, और किसी में है नहीं है, ए किसी में है नहीं है। दिस मीन्स ए से बी के बीच में जो है बेट क्या है, 2 है, ए से सी के बीच में 1 है, और ए से ई के बीच में 5 है। तो ए वर्टेक्स जब हम यहाँ ले रहे हैं तो ए से बी के बीच में क्या है, 2 है, ए से सी के बीच में 1 है, और ए से ई के बीच में 5 है। इसका क्या है, रेस्ट डी एफ जो नहीं दिया हुआ है वो सिंपली आप इनफाइनाइट कर सकते हैं या डैश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बी इज व्हाट, दिस हियर बी से, अब देखिए बी से कौन कौन से एज स्टार्ट हो रहे हैं, बी से यहाँ पे देख लीजिए, बी से यदि इसमें देखेंगे तो बी से एक एज जा रहा है E2, इसका वेट 2 है, सी को कनेक्ट कर रहा है, दूसरा डी को कनेक्ट कर रहा है, और तीसरा जी को कनेक्ट कर रहा है, 3 है। तो बी सी बी डी 2 5 और जी, बी से ए के बीच में भी है 2, बी से ए के बीच में 2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका ग्राफ का, एक बनाएंगे बी से ए के बीच में क्या है 2, ये तो यही 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। फिर बी से बी के बीच में वेट नहीं है, बी से सी के बीच में वेट क्या है, बी से सी है, इसका वेट 2 है, फिर डी का वेट 5 है, इसका बी से सी 2 है, बी से डी 5 है, फिर बी से जी का वेट भी क्या है, बी से, सिंपली हियर बी सी दैट व्हाट इज द वेट ऑफ बी बिटवीन बी एंड जी, दैट इज 3। बी से डी का 5 है और बी से जी का 3 है, बी से जी का 3 है। नेक्स्ट वेट इज सी। अब सी से देखेंगे तो सी से ए का कितना है, सी से ए में कोई एज नहीं है, इनफाइनाइट है। सी से बी में, अब देखिए यहां से आपको पता है कि बी से सी में कितना है, 2 है, तो सी से बी में भी 2 होगा, बिकॉज द ग्राफ इज अनडायरेक्टेड। सी से सी में देयर इज नो वेट असाइंड। अब सी से डी में देखिए यहाँ पे सी से डी के बीच में कोई एजेज है, सी से डी, इसमें देख लीजिए सी से डी है, E4 है, दैट वेट इज 4, और सी से बी में हो गया है, सी से ए के बीच में 1 है, सी से ए के बीच में 1 है यहाँ पे, ठीक है। सी से ए के बीच में है वेट, दैट इज यहाँ पे देखिए सी से ए के बीच में है 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सी से डी के बीच में क्या है, 4 है वेट, और सी से कोई एज कनेक्टेड है, इसमें देखिए सी से डी हो गया, सी से बी हो गया, सी से ए हो गया, ओनली 3 एजेस हैं। नेक्स्ट वी गो टू डी।
डी से आप देखिए, डी से एफ के बीच में है, डी से सी के बीच में है, डी से बी के बीच में है। तो डी से, इसमें से ही आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, डी से ए के बीच में, ए से डी के बीच में नहीं है, मतलब डी से ए में कोई एज नहीं है। डी से डी से बी में, तो यहाँ से बी से डी में देख लीजिए, बी से डी में 5 है, तो यहाँ डी से बी में 5 होगा। फिर यहाँ पे डी से सी में, तो यहाँ सी से डी में देखिए है कुछ, है 4 है, सी से डी में 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। फिर डी से डी में इनफाइनाइट होगा। फिर डी से ई, डी से ई के बीच में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ डी से ई के बीच में कोई वेट है, डी से ई, यस सॉरी, डी से ई के बीच में कोई वेट नहीं है, देयर इज नो डायरेक्ट एजेस। डी से एफ के बीच में 3 है, बस ओनली एक ही है, डी से एफ के बीच में 3 है, डी से एफ के बीच में, डी से एफ, डी से ई में कुछ नहीं है, डी से एफ में 3 है, जी में नहीं है। अब नेक्स्ट ई पे आ जाइए, तो ई से ए, तो यहाँ से 5 है, ठीक है, ई से ए के बीच में 5 है, क्योंकि यहाँ ए से ई में देख रहे हैं, ए बी सी डी ई 5 है। फिर अब देखिए ई से बी, तो यहाँ से बी से ई देख लीजिए, कुछ नहीं है, तो ये नल होगा। फिर बी से सॉरी ई से सी, तो यहाँ से सी से ई में देखिए कुछ है, सी से ई में भी कुछ नहीं है, ये भी। ई से सॉरी ई से डी के बीच में, तो यहाँ डी से ई के बीच में देखिए कुछ है, नहीं है, ओके। फिर डी से ई से एफ, ई सॉरी ई से ई के बीच में नहीं है कुछ। फिर ई से एफ के बीच में, यहाँ देखना पड़ेगा आपको कि ई से एफ के बीच में है कुछ, ई से एफ के बीच में है, 3 है वेट इसका, ई से एफ के बीच में भी 3 है, और ई से एफ के बीच में 3 है। ई से जी के बीच में वेट है, ई से जी, देयर इज नो वेट असाइंड टू बिटवीन ई एंड जी, ये वेट भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। देन एफ से, अब देखिए एफ से ए में, ए से एफ में कुछ नहीं है, नहीं है। एफ से बी में, तो यहाँ देखिए बी से एफ में कुछ है, नहीं है। एफ से सी में, तो सी से एफ को देखना है, नहीं है। फिर एफ से डी में, यहाँ पे देखिए डी से एफ में है कुछ, ए बी सी डी ई एफ, हाँ है, 3 है। एफ से डी के बीच में देखिए, यहाँ पे भी देख लीजिए एक बार फॉर कंफर्मेशन, एफ से डी के बीच में 3 है, ओके। फिर एफ से डी के बाद इस एफ से डी, एफ से ई के बीच में भी 3 है, और एफ से जी के बीच में 5 है। एफ से ई के बीच में 3 है, एफ से जी के बीच में 5 है। नेक्स्ट है आपका जी। अब जी से देखिए, जी से ए और जी के बीच में कोई एज नहीं है, ठीक है। जी से बी के बीच में, यहाँ से देखिए बी से जी में है कोई एज नहीं है, बी से जी में है 3 है। फॉर कंफर्मेशन बी चेक हियर, बी से जी, बी से जी, बी सॉरी बी से जी, बी से जी के बीच में 3 है, ओके। बी से जी के बीच में 3 है। फिर नेक्स्ट, और जी से सी, तो सी से जी के बीच में कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट जी से डी, तो यहाँ पे डी से जी देख लीजिए, डी से जी के बीच में कुछ नहीं है। फिर डी से ई, फिर डी से ई से डी के बीच में कुछ है, डी से जी से ई, तो ई से जी के बीच में नहीं है कुछ। ई से एफ के बीच में कुछ है, जी से एफ के बीच में, जी से एफ के बीच में यहाँ पे देखिए एफ से जी, यस 5 है, और फिर जी से जी के बीच में कुछ नहीं। तो 2 एजेज हैं ओनली, यहाँ देख लीजिए। जी से कनेक्टेड, ए से कनेक्टेड कितनी एजेज हैं, 3 एजेज हैं। यहाँ पे देखिए ए से कनेक्टेड 3 एजेज हैं, या समथिंग डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट। ई से कनेक्टेड 3 एजेज हैं, जो मैट्रिक्स है 1 2 3 ओनली, ठीक है। ए से ई के बीच में है। तो दिस इज द मैट्रिक्स, this is the matrix that is known as a adjacency matrix. This is a square and the size of matrix is n cross n. Then means इस matrix में क्या होगा, simply
ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू क्या, वेट ऑफ एच बिटवीन एच वी आई कॉमा वी जे, ठीक है। इफ देयर इज ए वेट, if weight of this is a of ij is equal to weight of ej, if aij या vi vj belonging to h, ठीक है, belonging to e, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज डैश डैश, या इसको हम लोग कह सकते हैं डैश आर इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं आप, जिसका वेट अनअसाइंड है, दिस मींस द वेट इज इनफाइनाइट। अब what happens when we start the formation of tree, means spanning tree from any vertex. Suppose we want to start the formation of tree from vertex D. अब आप देखिए D से हम यहाँ पे फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो सिंपली we draw a spanning tree like this, this A B C D, A B C D E F and G. Suppose we start the formation of tree from vertex D. अब vertex D से जब हमें स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम इस D में, D जो रो है हमारी, उस रो को हम चेक करेंगे कि इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वर्टेक्स कौन सा है, सबसे which vertex, which pair of vertices, which weight is, first we find the pair of vertices स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स डी whose weight is minimum। तो अब देखिए जब हम डी में आ रहे हैं, ए बी सी डी, डी ए है, तो इसमें देखेंगे कि सबसे मिनिमम वेट एच कौन सा है। डी से ए के बीच में इनफाइनाइट है, बी के बीच में 5 है, सी के बीच में 4 है, फिर डी से ई के बीच में कोई एज नहीं है, डी से एफ के बीच में 3 है, ए बी सी डी, और डी से एफ के बीच में कुछ नहीं, ई के बीच में कुछ नहीं है, डी से एफ के बीच में 3 है, और डी से जी के बीच में कोई नहीं। तो स्मॉलेस्ट वेट क्या है, ये 3 है, तो हम इसको ले लेंगे। नेक्स्ट जो हम कनेक्ट करेंगे, तो फर्स्ट वर्टेक्स दैट इज 3। अब देखिए इसको कनेक्ट करने के बाद चेक करेंगे कि वेदर इट फॉर्म्स अ साइकिल और नॉट। इफ इट फॉर्म साइकिल वी इग्नोर इट। तो अभी तो फर्स्ट वर्टेक्स है, तो सबसे पहले कौन सा कनेक्ट हो रहा है, वी स्टार्ट डी फ्रॉम, अब डी से कौन सा कनेक्ट हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ, तो डी से एफ को कनेक्ट कर दीजिए। तो डी से एफ को कनेक्ट करेंगे, देखिए व्हिच वेट इज, अब इसका वेट क्या है, 3 है, व्हाट एवर द एज नेम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपके पास 2 सेट ऑफ वर्टिसेज हो गए। कौन कौन से वर्टिसेज हैं, डी और ई। अब देखिए इसमें इनिशियली हमने डी वर्टेक्स लिया था, फिर हमने डी रो में गए और देखे मैट्रिक्स में कि कौन सा वर्टेक्स है जो कि मिनिमम डिस्टेंस पे है, कौन सा पेयर ऑफ वर्टिसेस स्टार्टिंग फ्रॉम डी, नेक्स्ट किसका डिस्टेंस है जिसका कि मिनिमम है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कौन सा है, डी और एफ। अब आपके ये 2 सेट आ गए, डी से हम एफ को कनेक्ट करें। अब हमारे पास क्या है, देयर आर 2 वर्टिसेस अवेलेबल, तो वी टेक अ 2 रोज फ्रॉम द मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू, ये क्या है, डी एंड एफ, करस्पॉन्डिंग टू डी एंड एफ। अब आप यहाँ पे देखिए डी और एफ में हमारे पास ये 2 रो लेना है हमें, डी और एफ, ओके। अब देखिए डी में देखिए, अब इसमें से फिर से हमें स्मॉलेस्ट एजेस फाइंड करना है, तो ये एज तो ऑलरेडी आपने ले लिया है, तो देयर इज नो नीड ऑफ दिस एज अगेन। अब हम देखेंगे कि ई व्हाट इज डी और एफ है, तो ये डी में स्मॉलेस्ट क्या है, 5 4 3 है यहाँ पे, एफ में जाएंगे तो 3 है यहाँ पे भी, लेकिन ये 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, डी और एफ के बीच में ये ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। तो अब एफ से डी के बीच में ये तो ऑलरेडी है। अब देखिए इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, नेक्स्ट 3 है 5 है, इसमें क्या है 5 है 4 है, तो दिस वन इज स्मॉलेस्ट। एफ से यदि हम ई को कनेक्ट कर रहे हैं, तो दिस वन इज स्मॉलेस्ट। एफ द एजेस बिटवीन एफ एंड ई, तो एफ एंड ई, तो हम नेक्स्ट एज कौन सा लेंगे, एफ और ई को कनेक्ट करेंगे एंड चेक वेदर इट फॉर्म्स अ साइकिल और नॉट। इट फॉर्म्स अ साइकिल, दिस मींस वी इग्नोर एंड वी फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एज बिटवीन
the next smallest edge which is either connected from D or connected from F, इसका या तो स्टार्टिंग वर्टेक्स F होगा या तो स्टार्टिंग वर्टेक्स क्या होगा, D होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा कि D, F और E को कनेक्ट करना है हमें। तो F और E के बीच का डिस्टेंस क्या है, F और E, दिस डिस्टेंस इज आल्सो 3, दिस नॉट फॉर्म्स अ साइकिल, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास जो सेट ऑफ वर्टिसेज हो जाएंगे, जो हमें रोज देखना है वो डी, ई एंड एफ, डी, ई एंड एफ। अब देखिए इन तीन रोज को देखिए, डी, ई और एफ। तो अब देखिए डी ये रो देखेंगे, एफ रो देखेंगे और ई रो देखेंगे। अब इसमें से देखिए ये ऑलरेडी ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब इसमें से देखिए कौन सा मिनिमम है। डी में यदि जाएंगे तो यहाँ पे हमें 4 और 5 में से 4 मिनिमम है। ई में जाएंगे तो ऑलरेडी ये डी, ई और एफ, ई और एफ के बीच में कनेक्शन हम कर चुके हैं, दिस मीन्स ये भी हो चुका है ई और एफ। यहाँ पे 5 मिनिमम बचेगा। और यहाँ पे एफ में क्या है, एफ में एफ और जी के बीच में कनेक्शन है 5। तो विच वन इज मिनिमम, तो ये दिस वन इज मिनिमम 4। डी से यदि हम को कनेक्ट करते हैं तो दिस गिव्स सम मिनिमम बिट। यदि हम डी से यहाँ पे देखिए ई से यदि हम ए को कनेक्ट कर रहे हैं तो दिस बिट इज 5, दिस इज मोर देन दिस। अब यहाँ पे देखिए एफ से यदि हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं जी को, तो दिस इज आल्सो 5, दिस इज मोर। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि दिस इज, हम क्या कनेक्ट करेंगे, डी से सी को कनेक्ट करेंगे। तो डी से कनेक्ट, इसको भी क्रॉस कर दीजिए, डी से सी को कनेक्ट करेंगे, डी से सी को कनेक्ट करेंगे तो दिस वेट इज 4। तो यहाँ पे आप डी से सी को कनेक्ट करें, दिस नॉट फॉर्म्स अ साइकिल, वेट इज 4। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज, अब आपके पास नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक डी क्या आ गया, डी ई एफ, डी ई एफ सी। अब इन चारों रोज को देखना है आप, फिर the next vertices that is connected from D or E or F or G, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, that not forms a cycle and the weight of edge is minimum होना चाहिए। तो अब D, E, F और G में देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे D और E मीन्स C और D के बीच में भी कनेक्शन ऑलरेडी ये वाला हो चुका है। अब आपके पास ये रो है, C है, D है, E है और F है, 4 वर्टिसेज हैं। इनसे देखना है, C से देखेंगे तो इसका C और A और सी और बी, ठीक है, सी से ए के बीच में वेट क्या है, 1 है, सी से ए बी के बीच में क्या है, वेट 2 है। डी में देखेंगे तो इससे मैक्सिमम ही मिल रहा है वेट, और ई में देखेंगे तब भी इससे मैक्सिमम मिल रहा है, एफ में देखेंगे तब भी 5 मिल रहा है, जो बचा हुआ है इससे मैक्सिमम। दिस मीन्स फर्स्ट वी ट्राई टू कनेक्ट बिटवीन द एजेस ऑफ बिटवीन सी एंड ए, बिकॉज व्हिच वेट इज मिनिमम। सी और बी का देखेंगे तो 2 है। तो अब देखिए ये सी और ए के बीच में कनेक्शन होगा, तो सी और ए को कनेक्ट करेंगे, इफ नॉट फॉर्म्स अ साइकिल। तो यहाँ पे सी और ए को कनेक्ट कर लीजिए, इसका वेट क्या आ गया, 1। नेक्स्ट अब आपका इसमें हो जाएगा, ये भी एज हो जाएगा ए, डी, ई, एफ एंड जी, ये हो गया। अब यहाँ पे आप ए रो को भी इंक्लूड कर लीजिए, ए रो भी इंक्लूड हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट मिनिमम वेट एच लेना है, व्हिच इज आइदर स्टार्ट फ्रॉम ए और सी और डी और ई और एफ, किसी से भी स्टार्ट हो। तो अब देखिए यहाँ पे ए से यदि देखेंगे तो ए से बी के बीच में क्या है, 2 है, और यहाँ सी में भी देखेंगे तो सी से बी के बीच में क्या है, 2 है। तो यहाँ पे देखिए इसमें और सी से ए से सी के बीच में ऑलरेडी हमने कनेक्शन कर दिया है, तो ये वेट नहीं रहेगा, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी दिस फॉर्म्स। अगेन करेंगे तो वो क्या करेगा, पैरेलल एजेस जनरेट करेगा। बी, अब देखिए सी से देखेंगे तो सी में, सी से हम ए को कर चुके हैं, सी से बी बचा हुआ है, इसका वेट 2 है, और इसका वेट क्या है, ए से बी का वेट क्या है, 2 है, ए से ई का वेट 5 है। तो यदि मिनिमम वेट एच की बात करेंगे तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है। तो आइदर वी सिलेक्ट दिस और दिस, या तो हम ए से बी को कनेक्ट करें या सी से बी को कनेक्ट करें, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, बिकॉज द वेट इज सेम। तो आप ए से बी को यदि कनेक्ट कर देते हैं, दिस फर्स्ट चेक व्हेन वी कनेक्ट फ्रॉम ए एंड बी, दिस नॉट फॉर्म्स अ साइकिल, दिस नॉट फॉर्म्स अ साइकिल, दिस मीन्स दिस इज 2,
दिस वेट इज 2, नॉट फॉर्म्स अ साइकिल। अब देखिए अब आपका बी एच भी आ जाएगा यहाँ पे। अब आपके पास ओनली कौन सा बचा है, अब ये सब ले लीजिए, ओनली जी बचा हुआ है। तो बी से जी, इन सबसे जी का कॉलम देख लीजिए किसमें मिनिमम है। ठीक है, इसमें से जी ओनली लास्ट एज बचा हुआ है, लास्ट वर्टिस, तो इसमें से जी का कॉलम देख लीजिए। अब देखिए इसमें से जी ये 3 है और ये 5 है, और इसमें तो ओनली 3 एंड 5 है। तो या तो हम बी से जी को कनेक्ट करें, क्योंकि बी जी का कनेक्शन या तो बी से है और या तो एफ से है। तो बी और बी से जी को कनेक्ट करने में जो वेट है वो 3 है, और जो जी से सॉरी एफ से कनेक्ट करना है उसका वेट क्या है, 5 है। तो दिस मीन्स दिस वन इज मिनिमम। तो बी कनेक्ट नेक्स्ट एज ए बिटवीन बी एंड जी। तो अब आप नेक्स्ट बी और जी को कनेक्ट कर दीजिए। इसका वेट क्या है, दैट इज 3। When we find the sum of the cost or sum of weight of this spanning tree, sum is sum of weight of spanning tree, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 3 + 4 + 2 + 1 + 3, this is equal to 3 + 3 6 + 4 10 + 2 12 + 1 13 + 3 16. What is the weight of this spanning tree? When we find the spanning tree from weight of spanning tree, that is equal to 2 + 3 + 4 + 1, और इसका वेट क्या था, ए और बी के बीच में 2 था, तो ये क्या था, ए और बी के बीच में देख लीजिए क्या वेट है, यहाँ पे 2 ही है। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 2 + 3. What is the sum of weight? That is 3 + 2 5 + 4 9 + 1 10, or 10 + 3 13 + 2 15. What is the weight of this? This is 15. 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3. वेट यहाँ पे देखिए क्या रहा है, इसमें 3 3 के 2 वेट हैं, इसमें 3 कितने वेट हैं, 3 के 2 वेट हैं, 4 का 1 है, 3 + 3 6 + 4, टोटल वेट इस केस में क्या रहा है, 3 + 3 6 4 10 और 10 16 आ रहा। यस, ई एफ तो 3 है ना, ई और एफ 3 ई और एफ का 3 है इसमें वेट ना, हाँ यही गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे भी ई और एफ का वेट क्या था, 3 था, तो ये क्या हो जाएगा 16। दिस मीन्स आइदर आप जो है क्रुस्कल से फाइंड करिए या प्रिम्स एल्गोरिथम से फाइंड करिए। प्रिम्स में सिंपली आपको क्या करना है, आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर लेना है, दिस इज ए वेटेड मैट्रिक्स। उसमें सिंपली क्या कर देना है कि जो जिस वर्टेक्स से, दिस इज ए वर्टेक्स क्रॉस वर्टेक्स मैट्रिक्स, 7 वर्टिसेस हैं तो 7 क्रॉस 7 मैट्रिक्स। अब एक पर्टिकुलर वर्टेक्स लेंगे, उससे हम सारे नेक्स्ट वर्टिसेज को कनेक्ट करेंगे, जिसके बीच में एज एग्जिस्ट कर रही है उसका वेट हमें यहाँ पे लिख देना है, जिसके बीच में एज नहीं एग्जिस्ट कर रही है सिंपली बी राइट डैश आर इनफाइनाइट। ठीक है, बिकॉज वेट इज नॉट असाइंड। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स बना लेंगे। बी स्टार्ट, दिस इज आवर फ्लेक्सिबिलिटी, दैट बी स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ स्पैनिंग ट्री फ्रॉम एनी वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट करेंगे, आपको रिजल्ट जो मिलेगा दैट इज द मिनिमम रिजल्ट, the result is minimum. So this is clear or not? यस सर, ये कह रहे हैं कि हम C2A या C2B जब जा रहे हैं तो दोनों का वेट सर इक्वल है। एक बार देखिए, एक बार या तो C से A कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का वेट C से A या C से B या फिर A to B, C to B और A to B। हाँ, ये सी दोनों का वेट इक्वल है, तो ये दूसरी फॉर्मेशन ट्री, दूसरी भी ट्री आप बना सकते हैं यदि वो साइकिल फॉर्म नहीं कर रही है। तो इसमें क्या है कि मोर देन वन ट्री एग्जिस्ट कर सकती हैं व्हिच वेट इज सेम, बट ऐसा नहीं होगा कि उससे मिनिमम वेट की दूसरी ट्री आपको मिल जाए। आप यहाँ पे बीच ये भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से A से B लिया था, आप क्या करिए C से B ले लीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, तो दूसरा आपको मिल जाएगा
लेकिन उसका वेट वही रहेगा। यहाँ पे आप सी से बी ले लेते हैं, यदि हम इसको हटा दीजिए, ये आप सी से बी ले लीजिए, ठीक है, तब भी इसका वेट क्या है 2 होगा। तो सम ऑफ वेट करेंगे तो आपको सम ऑफ वेट कितना मिलेगा 16। दिस इज आल्सो अ ट्री, दिस इज ए कनेक्टेड, तो मींस स्पैनिंग ट्री इज नथिंग बट अ कनेक्टेड ग्राफ हैविंग n-1 vertices। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है, द वेट ऑफ द ट्री बी फॉर्म अ स्पैनिंग ट्री हुज वेट इज मिनिमम। तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री? So this is the procedure for finding a minimum weight spanning tree, and complexity of Prim's and Kruskal algorithm is order of, this is complexity of Kruskal algorithm की बात करेंगे तो this is order of n square, क्योंकि यहाँ पे हमने n क्रॉस n का मैट्रिक्स जो है ड्रा किया है, और सिंपली दिस इज रिटन एज ऑर्डर ऑफ, इसको बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ दिस इज n comma bv, what is the we discuss about this in this case, the complexity is order of n square, but the complexity of Kruskal algorithm is changed. So this is the here the timing of, this is the timing of Kruskal algorithm, each node in its own set sort edges in increasing order। तो sorting का generally क्या होगा, order of n like time, and add shortest edge that connects to set, add shortest edges that connects to, so this is the time of this is order of n log n बोल सकते हैं हम इसको। in case of Kruskal algorithm the time is order of n log n, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो स्टार्टिंग में लग रहा है वही लग रहा है स्टार्टिंग में, इसके बाद आपको आउट ऑफ एजेस जो है n log n बोल सकते हैं, या ऑर्डर ऑफ n log e कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ n log e। फिर n इज द नंबर ऑफ एजेस एंड e इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो दिस इज द theory of Prim's and Kruskal algorithm। Here this is given, pick an arbitrary, this is the theory behind the Prim's algorithm, pick an arbitrary vertex and b grow the MST as a cloud of vertices starting from vertex yes, starting from vertex yes, b store with each vertex v as a label dv। हम जनरली क्या करेंगे, dv का dv फाइंड करेंगे, that is the distance from s to v and the smallest weight edge of an edge connecting v to a vertex in the cloud। तो smallest weight edge होगा उसको हम कनेक्ट करेंगे, and each step b add to the cloud the vertices u outside the cloud with the smallest distance label, and b update the labels of the vertices adjacent to u। So this is simply the procedure is same, either we use this or simply we use a matrix version of the algorithm। Next one is the Hoffman codes। Hoffman codes, this is also a greedy approach to find the code which code corresponding to a particular characters that minimize the storage capacity। So this is very effective technique for compressing data, and this is saving the files up from 20 to 90% depending on the level of code, and it uses a table of frequencies for occurrence of characters। तो simply यदि आपका एक पैराग्राफ है या one file है that consisting 20 pages or 100 pages or 1000 even 1000 pages, and the how many frequency, what is the frequency of each character in the file। so first we find the frequency of characters or frequency of occurrences of characters, and then we make a table corresponding to the frequency of each character, occurrence of each character। so there are two type of code length, whether we assigned a fixed code length or variable length code। fixed length code, suppose only 6 characters are used in the text, and then we need 3 bits to represent 6 character। suppose here suppose only 3 characters are used, only 6 different characters are used in the text, then we need 3 bit to assign these 6, and these 6 characters are assigned through a 3 bits to represent 6 character, that is a is equal to हमने 0 0 0 कर लिया, b में 0 0 1 and up to f में 0 0 1 कर लिया। suppose these 6 character that are used in a
फाइल टू रिप्रेजेंट दिस। अब यहाँ पे मान लीजिए ए है, सी है, डी है, एफ है, जी है एंड एच है। इसको हमने फिक्स्ड बिट, अब 6 कैरेक्टर है तो 6 कैरेक्टर को मिनिमम 3 बिट्स यूज होगी फॉर असाइनिंग ईच कैरेक्टर डिफरेंट बिट। इसको यदि हमने 0 0 0 दे दिया, इसको 0 0 1 से साइन कर दिया, 0 1 0 से साइन कर दिया, 0 1 1 से साइन कर दिया, 1 नेक्स्ट को 1 0 0 से कर दिया, फिर नेक्स्ट को 1 0 1 से कर दिया। अब इन 6 को तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग 6 कैरेक्टर अब इस 3 + 3 + 3 + 3। अब ये सपोज करिए कि आपका जो फाइल है दैट कंसिस्टिंग 100 कैरेक्टर, ठीक है, दैट कंसिस्टिंग 100 कैरेक्टर। आउट ऑफ 100 कैरेक्टर्स ईच बिट इज असाइंड एज ए, मींस टोटल 100 कैरेक्टर है इसमें क्या है, ए की फ्रीक्वेंसी सपोज करिए 50 है, सी की फ्रीक्वेंसी क्या है, सी की फ्रीक्वेंसी है सपोज करिए 30 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 5 30 80 + 89, इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज करिए 6 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। ओके, तो अब देखिए इसको भी, तो टोटल हमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नीडेड टू रिप्रेजेंट टू स्टोर 100 कैरेक्टर लेंथ। तो यदि हम, बिकॉज कैरेक्टर टेक्स व्हेन वी स्टोर अ कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर इन अ फाइल, तो इट विल ऑक्युपाई 1 बाइट स्पेस इन मेमोरी। तो व्हेन वी रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर थ्रू अ फिक्स्ड कोड, तो इट मे बी दैट इट टेक्स अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे टोटल कैरेक्टर कितने हैं आपके पास 6 हैं ओनली। आउट ऑफ कैरेक्टर these 6 characters are appeared. So these characters A is appeared 50 times, C is appeared 30 times, D is appeared 5 times, 1 is appeared 4 times, G is appeared 6 times, and H is appeared 5 times. तो नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि आप किस पर्टिकुलर कैरेक्टर को यहाँ when we assign a fixed length code to each character, यहाँ पे हमने क्या किया है, फिक्स्ड लेंथ कोड असाइन किया है। तो टोटल 100 कैरेक्टर हैं, तो कितनी भी बार कोई भी कैरेक्टर रिपीट कर रहा है, ऑल आर असाइंड 3 बिट कोड। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल 100 कैरेक्टर्स आर लेटर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और ईच कैरेक्टर के लिए क्या चाहिए 3, तो टोटल 300 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, 300 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर 100 कैरेक्टर। व्हेन बी असाइन, अब सपोज करिए इसका अकरेंस क्या है 50 है, 50 टाइम है। अब यदि हम उसको सार्टर कोड असाइन कर दें, क्योंकि ये जो है ज्यादा टाइम रिपीट कर रहा है, सपोज दिस इज असाइन टू, हम इसको 1 असाइन कर दे रहे हैं। ये 30 है, इसके जस्ट नेक्स्ट क्या है, इसको 30 है, इसको हम यदि इसको 0 1 से साइन कर दें। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ये 5 है, तो इस 5 को हम सपोज करिए किससे साइन कर दें, हम इस 5 को दिस इज असाइंड एज this is assigned as 1 0 0 0 1 0 0 1, इससे हमें साइन कर दें, 0 0 0 1 से साइन कर दें। इसका क्या है फ्रीक्वेंसी 4 है, इसको सपोज करिए हम किसी दूसरे कैरेक्टर से, दूसरे लेंथ से साइन कर दें, इसको हम इसका भी 5 है, तो इसको सपोज करिए हम असाइन कर दे रहे हैं 0, सॉरी इसको हम असाइन कर दे रहे हैं 0 0 1 1 से साइन कर दे रहे हैं। इसको हम असाइन कर दे रहे हैं, सपोज करिए बी असाइन दिस एज ए, हम इसको असाइन कर दे रहे हैं 1 0 1 0 नहीं कर सकते, 0 0 0 0 1 0 1 से कर दे रहे हैं, 0 0 1 0 1 से कर दे रहे हैं, और इसको हम कर दे रहे हैं 0 0 1 1 1 से कर दे रहे हैं।
हाउ मेनी, या इसको 5 है 6 है, ठीक है, तो सार्टर जो है 6 है, तो इसको और वो कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें व्हेन बी स्टोर ईच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ऑफ 50 कैरेक्टर, आउट ऑफ 50 कैरेक्टर ईच कैरेक्टर ऑफ एज सी, इसको कितना चाहिए, 2 बिट चाहिए स्टोरेज, ठीक है, 0 1 से हम स्टोर कर रहे हैं। फिर ये 5 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट यूज हो रही है, 4 बिट, तो प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, प्लस इसको देखिए 5 बिट हो रहे हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, देखिए क्या हो जाएगा, 50 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, तो दिस इज 60 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 20 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 20, फिर 6 बाई मल्टीप्लाइड बाई 4 है दैट इज 5 है दैट इज 30 प्लस 20। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड, 60 प्लस 50 110 प्लस 40 150 प्लस 50 200, तो टोटल बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस सेम डेटा इज 200 बिट्स। अब ये देखिए व्हेन वी असाइन अ वेरिएबल लेंथ कोड टू ईच कैरेक्टर्स and this depends on the frequency of characters, means sorter when the frequency of occurrence of character is more, we assign a shorter code length. When the frequency of character is less, we assign a longer code word. तो सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कितना जो है, ओनली आपको 200 बिट से ही आपका काम चल रहा है। तो व्हाट 200 is 300, तो दिस मीन्स अप्रोक्सीमेटली सम परसेंटेज ऑफ डेटा इज सेव्ड। ये है आउट ऑफ 300 ओनली हमने 200 बिट से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस मीन्स वी सेव सम डेटा, मीन्स वी सेव सम स्पेस। आपको जहां 300 बिट्स लगना था वहां आपने डेटा को 200 बिट्स में, तो दैट्स व्हाई वी यूज हियर वेरिएबल लेंथ कोड इन केस ऑफ, this is means when fixed length code is assigned to each characters, and suppose there are 6 characters, there are 6 characters in a file that are used in a file as a text, then total number of means fixed character fixed bits that are assigned to each character are 3 bits. तो a is represented through 0 0 b and f, here a to f यूज किया है हमने। तो दिस मेथड रिक्वायर्स 3 लॉक्स बिट्स टू कोड इंटायर फाइल हैविंग 1 लाख कैरेक्टर्स। तो इफ द सपोज फाइल, यहाँ पे हमने लिया था कि सपोज फाइल हैविंग 100 कैरेक्टर्स, then how many bits are required? तो 1 multiplied by 3 or 100 multiplied by 3 in case of 300 bits are required, but here the file having 1 lakh character, so this means 3 lakhs bit is required। और यही केस क्या है कि यही यदि हम केस ले लें कि सपोज द फाइल कंसिस्टिंग 1 लाख कैरेक्टर, तो 1 लाख कैरेक्टर 100 की बात हमने लिया था, तो 1 लाख कैरेक्टर में क्या हो गया, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 3, तो दिस विल फाइल बाई 3 लाख बाइट, 3 lakh bits, ठीक है। When the same is represented through a variable, so this means 50 multiplied by 1 plus, suppose each the out of 100 characters, the occurrence of the frequencies are given in percentage, means 50% occurrences of character A in a file, 30% occurrences of character C in a file, 5% occurrences of D in a file, 4% of occurrences of F character in a file, 6% occurrences of G character in a file, and 5% occurrences of H character in a file। तो यदि हम टोटल ओवरऑल करेंगे तो ये 100 आएगा, इसकी वैल्यू 50 प्लस 30 80 85 89 695 प्लस 500, तो आउट ऑफ 100 अब टोटल मीन्स, तो आउट ऑफ 100% तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 plus 4 multiplied by 5 plus 6 multiplied by 5 plus 5 multiplied by 4, that is multiplied by 1000, ठीक है। 1000 and 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख आएगा। तो दिस मीन्स टोटल क्या होगा, ये 200 आ रहा है, तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो दिस इज इक्वल टू 2 lakhs। तो इन दिस केस ओनली 2 lakh bits is required to store 1 lakh characters।
2 locks bit is stored. So this means this also save a space. This also save a space, means approximately 33% space is saved. So this is the fixed length code, means fixed length code is assigned to each character which is appeared in the file, and in a variable length code we can do considerable better by giving frequent character short code, जो maximum frequency है जिसकी इसको short code word assign करेंगे, and in frequent characters long code word is assigned, means the characters whose frequency is less we assign a longer code word. Frequent, अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर विच इज गिवन, ए फ्रीक्वेंसी ऑफ कोई भी कैरेक्टर है, ए है, सपोज यहाँ पे हमने ले लिया कि दिस कैरेक्टर इज ए, दिस कैरेक्टर इज बी, दिस कैरेक्टर इज सी, दिस कैरेक्टर इज डी, ई एंड एफ. So the file which consisting 1 lakh characters and the 45% occurrences of character is A, 13% occurrences of character is B, 12% C, 16% D, E, 9% E and 5% F. तो अब when we assign a fixed code word to 6 character को represent करने के लिए how many bits are required? तो 3 बिट से 2 बिट से हम मैक्सिमम 4 कैरेक्टर को ए बी सी डी को रिप्रेजेंट करना है तो ओनली 2 बिट्स रिक्वायर्ड. बट व्हेन वी रिप्रेजेंट 6 कैरेक्टर तो एटलीस्ट 3 बिट्स इज रिक्वायर्ड. 3 बिट से हम अप टू 8 कैरेक्टर कर सकते हैं रिप्रेजेंट, तो ओनली हियर 6 कैरेक्टर इज गिवन. तो 3 बिट्स इज नीडेड टू implement these characters. इसको हमने 0 zeros कर दिया, 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1. तो when we store 1 lakh character तो ये कितना हो गया, 3 lakhs bit is needed. Variable length code, suppose we assign this code for A को हमने 0 assign कर दिया, ठीक है, B को हमने 1 0 1 assign कर दिया, C को 1 0 0 कर दिया, D को 1 1 1 1 कर दिया इस कैरेक्टर को, इसको 9 है तो 1 1 0 1 कर दिया, इसको 5 है तो 1 1 0 0 कर दिया. तो here we see that जनरली फ्रीक्वेंट कैरेक्टर शॉर्ट कोड वर्ड इज असाइंड. ये फ्रीक्वेंट कैरेक्टर है, मैक्सिमम अकरेंस ऑफ दिस कैरेक्टर आकर, तो हमने इसको सबसे शॉर्टर कोड असाइन किया. देन देखिए नेक्स्ट क्या है, 16 है, इसको भी हमने शॉर्टर कोड 3 बिट का असाइन कर दिया. फिर 13 है, इसको भी हमने शॉर्टर कोड 3 बिट का ही सपोज के लिए असाइन किया. अब ये कैसे आएगी बिट वैल्यू की हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस कैरेक्टर और दिस कैरेक्टर और दिस कैरेक्टर्स. तो बाय यूजिंग अ हॉफमैन टेक्निक्स बी compute the number of bits to represent frequent character and the number of bits that are used to represent infrequent characters. So we use Hoffman coding for assigning this. So we discuss this later. So what is this? तो now there is a time, क्योंकि टाइम 10:06 हो रहा है, तो आपके पास टाइम है, नेक्स्ट क्लास हो तो फिर मैं यही स्किप कर दूं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. Okay, now this my next class is started from 10 a.m. onwards. That's why we today we finish the class and we will discuss this in the next class. Means tomorrow class we will finish the Hoffman coding and deadline scheduling algorithm. ठीक है, तो generally turn on your video for attendance. Okay, thank you. Now you can leave now. Thank you, sir.